Welcome to my new video, Animal Kingdom, phylum Hemichordata and Chordata. First of all, we'll study about phylum Hemichordata. These are also called as half chordates. The phylum Hemichordata includes the acorn or tongue worms and their allies. There are about 90 species of hemichordates. Their body is divided into three parts as shown in the diagram. इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक. दिस ऑल पार्ट इज ट्रंक. Proboscis has mouth in it, collar, and then this trunk region has branchial region, gill pores, dorsally curved genital wings, mid-dorsal ridge, and then hepatic caecae region, anus, and post-hepatic region. Then next about the general characteristics of hemichordates. Natural history. They are mostly marine. Some are solitary. Solitary means they live alone, naked and slow moving. Others are sedentary. Sedentary means they do not move. They remain fixed at one position with investment. And colonial. Colonial means they live in groups. All feed on microorganisms and debris by filter. Body form. Their body is soft and unsegmented and has worm-like or vase-like form and three distinct regions, proboscis, collar and trunk. Just I have shown you in the diagram. Symmetry. Their symmetry is bilateral. Bilateral means their right and left sides, they are mirror images of each other. Then hemichordates are triploblastic. About their germinal layers, they are triploblastic. That means they have three germinal layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. About level of organization, hemichordates have organ system level of organization. Then about their appendages, there are no locomotory appendages. The collar may beat arms with tentacles and because of that they can move only. Body wall. Their body wall consists of single layered epidermis and musculature of smooth, mostly longitudinal fibers. Then their body cavity. Body cavity, they have true coelom with three parts corresponding to the three body divisions: an unpaired proboscis coelom, a paired collar coelom and a paired trunk coelom. जैसे इनकी बॉडी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबोसिस, ट्रंक और कॉलर, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, उसी तरीके से इनका सिलोम भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट प्रोबोसिस, देन कॉलर एंड ट्रंक सिलोम. Then their digestive tract is complete. That means they have mouth and anus both. Proboscis contains a hollow outgrowth from the gut called the buccal diverticulum. It is their important feature, buccal diverticulum or stomochord, and regarded as notochord in the past. Respiration occurs by pair to numerous pairs of gill slits. एक पेयर भी हो सकता है, ज्यादा पेयर्स भी हो सकते हैं गिल स्लिट्स के. It depends upon species to, it varies from species to species or through the general body surface. Circulatory system की बात करें, it includes a dorsal heart, two main longitudinal vessels, a dorsal and a ventral, interconnected by small lateral vessels and sinuses. Blood इनमें colorless होता है and without corpuscles. जैसे हम में आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, इनमें वैसे कोई कॉर्पसल्स नहीं होते. नर्वस सिस्टम इनमें डिफ्यूज टाइप का होता है, कंसिस्टिंग ऑफ एन एपिडर्मल प्लेक्सस ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स. Excretory system comprises a proboscis gland or glomerulus situated in the proboscis and connected with blood vessels. If we talk about the reproduction, sexes may be separate or united. The gonads may be in several pairs or only in one pair. Fertilization is external or internal. Asexual reproduction occurs in only one group. Development, they may include a free swimming Tornaria larva. That means their development may be indirect or may be direct. In certain species it is direct, in other species it is indirect through larval stage called as Tornaria larva. And their important examples are Balanoglossus, the acorn or tongue worm, Cephalodiscus, that is Cephalodiscus, and Rhabdopleura. Then next
we'll talk about phylum Chordata, the most important phylum. Chordates are most highly evolved multis. इनमें सबसे ज्यादा फीचर्स हैं. They are characterized by 4 basic features. सबसे ज्यादा ये 4 बेसिक फीचर्स हैं जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइदर थ्रू आउट और ड्यूरिंग. ये 4 बेसिक फीचर्स इनमें या तो पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहेंगे या इनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में रहेंगे, बट इनमें प्रेजेंट होंगे. और इन्हीं की प्रेजेंस से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म कॉर्डेट है. अब वो 4 डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट है नोटोकॉर्ड. अभी हमने हेमिकॉर्डेट्स में भी नोटोकॉर्ड का नाम पढ़ा. तो हेमिकॉर्डेट्स को भी हाफ कॉर्डेट्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है. ये इनकी नोटोकॉर्ड है, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हो. दिस इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड, इट इज सॉलिड फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर situated on the mid dorsal side between the, ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है. डोर्सल साइड वो होती है which lies towards the sky, sorry, which lies towards the sky, वो डोर्सल साइड. और जो अर्थ की तरफ सरफेस लाई करती है वो वेंट्रल साइड होती है. तो डोर्सल सरफेस पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. हमारे में भी डोर्सल सरफेस पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. नोटोकॉर्ड जो हमें वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो गई है, हमें उसको वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं और ये इनमें लोअर ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड का नाम दिया गया. मिड डोर्सल साइड बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एलिमेंट्री. It persists throughout life in the lower chordates, but it gets surrounded or replaced by jointed vertebral column in the adults of higher chordates like us. Then dorsal hollow central nervous system like spinal cord in us. So यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इनमें डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, हमारी जो नर्व कॉर्ड है उसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं और उसके अंदर भी एक हॉलो कैविटी है. और इसीलिए ये किससे सेम है एज दैट ऑफ द डोर्सल हॉलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इज ऑलवेज हॉलोज एंड लाइज डोर्सल टू द नोटोकॉर्ड. हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट लाइज इन द वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर लाई करती है. द कैविटी ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोसील. हमें उसको स्पाइनल कैविटी बोलते हैं. Pharyngeal gill slits. All chordates possess at some stage of life a series of paired openings. Adult form में नहीं भी होंगे तो लोअर फॉर्म में, लार्वल फॉर्म में ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे. ऐसे गिल स्लिट्स जैसे आपने फिश के साइड पर देखे होंगे, ये गिल स्लिट्स हैं. फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स की साइड पर होते हैं और मोस्टली ये फेरिंग्स में ओपन होते हैं, लेकिन कुछ स्टेजेस में ये अंदर कैविटी में ओपन होते हैं. टेल, इट इज पोस्ट एनल पार्ट. एनस, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है फ्रॉम माउथ टू एनस. एनस के बाद वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज पोस्ट एनल पार्ट. तो पोस्ट एनल पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा. हम लोगों में भी पोस्ट एनल टेल का यहाँ पर ये वर्टेब्रल कॉलम में टेल बोन प्रेजेंट होती है, विच इट मे बी रिड्यूस्ड और एब्सेंट इन सम एडल्ट कॉर्डेट्स. कुछ कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट होती है लाइक इन अस, लेकिन उसका टेल बोन जो है वो प्रेजेंट है. That shows that we are evolved from these chordates, these lower chordates. Then phylum Chordata is divided into 3 subphyla: Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. Urochordata, which are also commonly called as tunicates, एंड सिफेलोकॉर्डेटा, ये दो जो ग्रुप्स हैं ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं. द फर्स्ट टू आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स और इनको कलेक्टिवली यूरोकॉर्डेट को और सिफेलोकॉर्डेट को हम इकट्ठे क्या नाम देते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स, या इनको हम लोअर कॉर्डेट्स का नाम दे देते हैं. अगला है वर्टेब्रेटा. वर्टेब्रेट जो हैं दे आर हायर कॉर्डेट्स. Then about their classification, phylum Chordata को जैसे हमने अभी देखा, हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टेब्रेटा. यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को हम किस में इंक्लूड करते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा में. और वर्टेब्रेटा को हम हायर कॉर्डेट्स बोलते हैं. वर्टेब्रेटा जो है वो फर्दर डिवाइडेड है 2 में, अग्नेथा और ग्नैथोस्टोमेटा. इसको अग्नैथोस्टोम्स भी बोलते हैं और इसको ग्नैथोस्टोम्स भी बोलते हैं. मतलब विदाउट, ग्नैथा मतलब जॉज. दैट मीन्स विदाउट जॉज, दे आर विदाउट जॉज. अगर इनमें जॉज नहीं है, स्टोमा वर्ड जो है वो यूज होता है माउथ के लिए,
तो इनका माउथ अगर जॉज नहीं है तो गोल सा माउथ होगा, इसलिए इसमें जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं साइक्लोस्टोमेटा। एक ही क्लास है इसमें, साइक्लोस्टोमेटा। और जो ग्नैथोस्टोमेटा है ये फर्दर डिवाइडेड है पाइसेस में, फिशेस में। फिशेस फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप्स में, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। कॉन्ड्र मतलब है कार्टिलेज, इक्थिस का मतलब है फिशेस, दैट मीन्स कार्टिलेजिनस फिशेस। ऑस्टी का मतलब है बोन और इक्थिस का मतलब है फिशेस, दैट मीन्स बोनी फिशेस। These are cartilaginous fishes, these are bony fishes, these are the two types of fishes. These have fins for their movement, whereas all others, these four, third, fourth, fifth, sixth, these four, they are tetrapods, that means they have four foot. Amphibians, reptiles, aves and mammalia. These are the four classes under tetrapoda, under Gnathostomata. Chondrichthyes and Ostrichthyes, they are under Pisces, under Gnathostomata. Then first of all we'll study about Urochordates, that is tunicates. Notochord occurs, नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट होनी ही है, हमने अभी बात की थी कि या तो लार्वल स्टेज में होगी, यहाँ पर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट है, इन द टेल ऑफ द लार्वा। लार्वल स्टेज में भी टेल में ही प्रेजेंट है, विच डिसअपियर इन द एडल्ट्स। Nerve cord is present in larva. It is replaced by dorsal ganglion in adults. Gill slits persist in adults and opens into cavity called atrium. Pharynx में open नहीं होते, atrium में open होते हैं instead of the exterior. The tail may or may not persist throughout life. The adult's body is usually enclosed within a leathery test or tunic formed of cellulose-like organic substance, tunicin. Hence named, इसी tunicin के कारण इनको tunicates बोला जाता है। Larva undergoes retrogressive metamorphosis. Metamorphosis होता है conversion of larval stage into adult form. जब लार्वा से क्या बनता है, एडल्ट। उस लार्वल स्टेज से एडल्ट स्टेज में बनने में कुछ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है और कुछ ऑर्गन्स डिग्रेड होते हैं। जब ऑर्गन्स की डिग्रेडेशन से मेटामॉर्फोसिस होती है उसको हम बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव, मतलब वापस होगी। और जब ऑर्गन्स की फॉर्मेशन से होती है उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो यहां पर ये क्या शो करते हैं, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, दैट इज चेंज फ्रॉम बेटर डेवलप्ड लार्वा टू लेस डेवलप्ड, क्योंकि ऑर्गन्स जो हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स चेंज हो जाते हैं, हाई डेवलप से लेस डेवलप में आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स है इसमें हर्डमेनिया, सी स्क्वर्ट और डोलियोलम सैल्पा। देन नेक्स्ट इज सबफाइलम Cephalochordata. The notochord extends up to anterior end of the body and persists throughout life. Nerve cord also persists throughout life, but brain is not formed. Pharyngeal gill slits are more numerous and open, इनमें भी atrium में ही open होते हैं. Tail is present throughout the life. Development is indirect with the free living ciliated larva. Then about vertebrates, which are also called as craniata. Vertebrates are also called as craniata. They are advanced chordates. Notochord is present in the embryonic stage. In adults, notochord embryonic stage में है, adults में वही notochord किस में convert हो जाती है, vertebral column में, जिसमें consists of ring like bones, जिनको हम vertebrae बोलते हैं। आप अपनी back में भी feel कर सकते हो। The anterior part of the notochord, however, replaced by skull, और नोटोकॉर्ड का ही एंटीरियर पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन को कवर करता है, जिसको हम बोलते हैं स्कल और क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, टू प्रोटेक्ट ब्रेन, हेंस नेम्ड क्रेनिएटा, क्योंकि क्रेनियम को एंक्लोज कर रहा है, क्रेनियम बोलते हैं ब्रेन को, तो ये ब्रेन बॉक्स है, इसे ब्रेन को एंक्लोज कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा बोलते हैं इन सभी ऑर्गेनिजम्स को। इन सब में फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स आते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स परसिस्ट ओनली इन द एडल्ट्स ऑफ लोअर फॉर्म्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन सब में क्लोज टाइप है और हार्ट जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड है। इन वर्टेब्रेट्स में हार्ट जो था अगर प्रेजेंट था तो डॉर्सली सिचुएटेड था, इन सब में हार्ट जो है वो वेंट्रली सिचुएटेड है। और इनमें एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है जब इंटेस्टाइन्स में से वीन्स निकलकर लिवर में जा रही हैं। नॉर्मली वीन्स जो है वो वेने केवा में एंटर करती हैं और हार्ट में ब्लड को लेके जाती हैं, लेकिन कभी
जब वीन्स एक ऑर्गन से निकल के दूसरे ऑर्गन में एंटर करती हैं उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो इन सब में हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। दैट मीन्स इंटेस्टाइन से वीन्स निकलकर, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड किस में एंटर करेगा, वीन्स में, वीन्स से निकल के कैपिलरीज में एंटर करेगा, वहां से वीन्स में, वीन्स से निकल के किस में जाएगा, लिवर में। सो इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। Then respiratory pigment, hemoglobin is present in blood corpuscles. Excretory organs consist of pair of kidneys. Endocrine glands are present to regulate metabolism. They are unisexual and lack asexual reproduction. Then differences between non-chordates and chordates. Non-chordates means invertebrates. इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, एटलीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ या इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे हमने पढ़ा यूरोकॉर्डेट्स में टेल में प्रेजेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनमें वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है और गैंग्लियोनेटेड होता है। वेंट्रल मींस लाइंग टुवर्ड्स अर्थ, जैसे अर्थवॉर्म है। एक एग्जांपल आपको मैं देती हूँ, जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म इज इन्वर्टेब्रेट नॉन कॉर्डेट, उसमें उसको हम अपर साइड से कट करेंगे, सारे उसके ऑर्गन्स अगर हम रिमूव करें, सबसे नीचे अर्थ के साथ जो उसका पार्ट जुड़ा हुआ है उसमें हमें दिखाई देगी उसकी नर्व कॉर्ड। लेकिन कॉर्डेट्स में लाइक डॉग या कैट या लॉइन या फ्रॉग, उसकी जो बैक है, डोर्सल साइड है विच लाइज टुवर्ड्स द स्काई, उसमें हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाई देगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हॉलो एंड नॉन गैंग्लियोनेटेड। यहाँ हमें गैंग्लियास दिखाई देते हैं, जो स्वॉलन स्ट्रक्चर्स होते हैं नर्वस सिस्टम में, ये हमें नॉन गैंग्लियोनेटेड दिखता है। गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ फेरिंग्स एट सम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और थ्रू आउट द लाइफ। इनमें टेल एब्सेंट होती है, इनमें टेल प्रेजेंट होती है आइदर एट वन स्टेज ऑफ द लाइफ। डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहीं ना कहीं इनमें टेल प्रेजेंट होगी। हार्ट इफ प्रेजेंट, अगर इनमें हार्ट प्रेजेंट है तो डोर्सल पोजीशन में होगा, मींस इनकी वो साइड जो स्काई की तरफ लाई कर रही है। और हमें हार्ट मतलब कॉर्डेट्स में हार्ट जो है वो वेंट्रल इन पोजीशन होगा, जैसे हम में भी वेंट्रल इन पोजीशन है, क्योंकि हमारा ओरिजिन, ह्यूमंस का ओरिजिन एप से हुआ, और एप्स की वेंट्रल सरफेस कौन सी है, विच लाई टुवर्ड्स द अर्थ, वो वेंट्रल सरफेस है। तो हमारी वेंट्रल सरफेस कौन सी होगी, फ्रंट हमारा, और हमारी बैक जो है वो हमारी डोर्सल सरफेस है। हीमोग्लोबिन इफ प्रेजेंट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, अगर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो प्लाज्मा। यहाँ हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड कॉर्पसल्स में प्रेजेंट होता है। द फ्लो ऑफ ब्लड इज बैकवर्ड इन वेंट्रल वेसल्स एंड फॉरवर्ड इन डोर्सल वेसल्स। यहाँ पर उल्टा है, इट इज फॉरवर्ड इन वेंट्रल वेसल्स and backward in dorsal vessels. So we have learned about various phylums of the chordates. That means we have studied about this Urochordata, then Cephalochordata and Vertebrata. Vertebrates के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट वर्टेब्रेट्स की क्लासेस को इंक्लूड करेंगे, लाइक ग्नैथोस्टोम्स जो आपने पढ़ा, या फिर उसमें आगे हमने जो डिफरेंट क्लासेस देखी, साइक्लोस्टोम्स, और डिफरेंट हमने क्लासेस देखी ऑफ पाइसेस, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।